Assalamu alaikum. I welcome you to the course of digital image processing, and today we will also continue the same topic, which is color image processing. So in the last lecture what we have discussed is color image processing, what it means and why do we need it, what's the importance of it, and what are the basic properties of it. And then we also learn about what is the primary colors and what are the secondary colors. So if we have the basic colors and if we combine it, then we can generate some secondary colors. And then after that we also learned some characteristics of colors, that how we combine the colors and what are the true colors, that the saturation is totally 100%, and then we see how the color can be represented. And then we also learned the diagram, which is a chromaticity diagram, and we also learned that how to represent it, and we learned that the RGB colors which we can represent is not going to show all the color properties, so it's a bit of limited. And then we learned that there are different models of colors, so we can represent it. And the basic one that we started was RGB color model. We will continue from the same topic, RGB color model, and then we will also learn what is the SMY model and HSI color model, and how we can represent it and how we can mix all of these. And because the RGB color model is the basic one, so we need to convert from RGB to SMY and HSI. And then we will learn what is the pseudo color image processing. If we have pseudo color, how do we convert it and how do we use it. And then after that we will also learn the full color image processing. So we will continue from the previous topic, which was color modeling, and we learned that there are multiple types of color models, and then one of it is RGB color model, where we can represent the color in three basic units, and the primary colors are R, G and B. And then if we have all these three colors and we combine it in a certain ratio, then it generates the SMY model, which is cyan, magenta and yellow color. So if we combine all these three different colors, then it becomes 6. And there are also two components which are black and white color. So if we extend it to the black, then we also call it as a SMY and K model. And then after that there is another model which is called HSI color model, where we see the hue, saturation and intensity of colors in an image, and normally this is how we perceive the colors. तो हमने ये डिफरेंट किस्म के मॉडल देखे थे. इसमें हमने ये देखा था कि जो RGB है ये बिल्कुल बेसिक है, क्योंकि जो हमारे आईज में जो मैकेनिज़्म है कि वो किस तरह कलर को परसीव करते हैं, तो उनमें वो बेसिक 3 कलर्स हैं, उनकी बेसिस पर वो परसीव करते हैं. तो हम इसी को मॉडल करते हैं और हम देखते हैं कि अगर हम इसको रिप्रेजेंट करना चाहते हैं हार्डवेयर में, तो वो किस तरह होगा कि हम एक सिंपल पॉइंट लेते हैं जिसमें 3 बेसिक कलर्स होते हैं, प्राइमरी कलर्स होते हैं, और उनकी कम्बिनेशन से हम मल्टीपल कलर्स बना सकते हैं. उनमें से एक हमारे पास SMY मॉडल है. अगर हम इन तीनों को कंबाइन करते हैं तो हमारे पास 3 और किस्म के कलर्स आ जाते हैं, जिसमें डिफरेंट येलो, मैजेंडा एंड साइन कलर आ जाते हैं, जिसको अगर हम एक ब्लॉक की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं तो फिर हमारे पास जो 2 और कॉर्नर्स रह जाते हैं उसमें हम वाइट और ब्लैक कलर यूज़ करते हैं. तो टोटल 6 होते हैं अगर हम इनको कंबाइन करते हैं, और जब हम उसमें वाइट और ब्लैक कलर ऐड कर लेते हैं, चूँकि वो हमें और इन्फॉर्मेशन देता है, तो हम उसको एज ए नेक्स्ट मॉडल रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि SMY K मॉडल है.
अब ये हमें पता है कि जब हम कलर्स को विजुअलाइज करते हैं तो वो विजुअलाइजेशन जो है हम इस बेसिस पे नहीं करते कि कितनी क्वांटिटी आर की वैल्यू है, कितनी क्वांटिटी जी की और कितनी बी की है, बल्कि वो हम देखते हैं ह्यू और सैचुरेशन और इंटेंसिटी की बेसिस पर। तो इस ये डिफरेंट किस्म के मॉडल्स हैं और इन सब की अपनी अपनी इम्पोर्टेंस है। हमने ये फिर देखा कि अगर हम RGB को प्लॉट करते हैं तो वो एज अ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में हमारे पास एक क्यूब की फॉर्म में आ जाता है। तो जब क्यूब की फॉर्म में आएगा तो हम जब R की वैल्यूज़ 100% लेते हैं और G और B की वैल्यू 0 लेते हैं तो हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं 100 के सिचुएशन में। अब हम इसको 1 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको नॉर्मलाइज किया है और नॉर्मलाइज का मतलब ये कि हम 0 से 1 के दरमियान सारे वैल्यूज़ लेंगे तो उसकी कैलकुलेशन और उसको हैंडल करना इजी हो जाता है। अब सेम इसी तरह अगर हम ग्रीन वैल्यू ले रहे हैं तो 0 रेड की वैल्यूज़ हो जाएंगी, 1 ग्रीन की हो जाएगी और जो ब्लू है उसकी वैल्यूज़ हमारे पास 0 आ जाएंगी। सेम इसी तरह हमारे पास जो ब्लू है वो 0 0 और 1 आ जाएगा, क्योंकि ब्लू जो यहाँ पर B की वैल्यू है हमने उसको 1 कर दिया। तो ये क्योंकि हम रिप्रेजेंट करते हैं RGB के साथ तो इस वजह से जो हमारे पास R और जो G और B की वैल्यूज़ हैं वो हम एग्जैक्टली इसी तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब हम करते ये हैं कि जब हम इनको कंबाइन करते हैं तो जब ब्लू और रेड की कोई कम्बिनेशंस आती हैं तो वो हमारे पास मैजेंडा कलर बनाता है, और सेम इसी तरह अगर ब्लू और ग्रीन के कुछ कम्बिनेशंस आते हैं तो वो हमारे पास साइन कलर आ जाते हैं, और सेम इसी तरह अगर ग्रीन और रेड के कम्बिनेशंस आते हैं तो वो हमारे पास येलो कलर बनाते हैं। और जब हम इन सारे कलर्स को एक ख़ास पॉइंट के साथ मर्ज करते हैं तो वो वाइट कलर बनाएगा, और अगर हम इन 3 कलर्स को कंबाइन करते हैं तो वो ब्लैक कलर बना लेगा। और हम ब्लैक से अगर वाइट की तरफ एक डायगोनल लाइन खींचेंगे तो वो हमारे पास वो ग्रे स्केल के वैल्यूज़ होंगे कि हम डार्क कलर से जब आते हैं वाइट की तरफ तो वो कौन कौन से वैल्यूज़ होंगे, उनकी इंटेंसिटी क्या होगी। तो ये हमारे पास बेसिक मॉडल आ गया। अब इसके बाद हम कलर मॉडल को देखते हैं। अगर हम इस क्यूब को कलर दे देते हैं तो हम किस तरह विजुअलाइज कर सकते हैं कि हमारे पास R की वैल्यूज़ इंटेंसिटी यहाँ पर एक्सट्रीम है, G की इंटेंसिटी यहाँ पर एक इंक्रीज़ है और ब्लू की इंटेंसिटी यहाँ पर 100% है। तो अब हमने ये देखा कि हम जो कलर रिप्रेजेंट करते हैं वो मल्टीपल लेवल्स में हो सकते हैं, हम उसको मल्टीपल बिट्स के अंदर रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो वो कितने बिट्स में हम रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, जितने ज़्यादा बिट्स होंगे उतने उसके जो कलर्स के लेवल्स हैं वो उतने ज़्यादा होंगे। मतलब ये हुआ कि हम अगर यहाँ से आगे मूव करना चाह रहे हैं इस डायरेक्शन में तो हम कितने स्लाइसेस लेना चाह रहे हैं, इसमें हमारे पास जो कम्बिनेशंस बनेंगे वो कितने बनेंगे। अगर हम उसको 24 बिट में रिप्रेजेंट करते हैं तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 रेज़ टू द पावर 24 आ जाएंगे। यहाँ पर हमारे पास 2 रेज़ टू पावर 24 आएगा। तो हम इतने वैल्यूज़ इसमें रिप्रेजेंट कर सकते हैं, शेड्स बना सकते हैं। अब क्योंकि हमने ये देखा कि हम डिफरेंट लेवल्स ले सकते हैं तो उन लेवल्स को हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो जब हम क्यूब की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे तो हम उसको कहेंगे कि ये सेफ RGB कलर क्यूब है, और ये हमारे पास जो टोटल कम्बिनेशंस बन रहे हैं कलर्स के वो आ जाते हैं। यहाँ पर जो है रेड है, येलो है, ग्रीन है, और सेम इसी तरह हर एक कलर के डिफरेंट हमारे पास क्यूब्स बन जाएंगे। तो जब भी हमारे पास इस क्यूब में कोई भी पॉइंट होगा तो वो येलो होगा, और जब इससे हम बाहर जाएंगे तो क्योंकि यहाँ पर दूसरा क्यूब बनेगा जो कि इससे डिफरेंट होगा तो हम उस कलर को लेंगे जो कि एक्चुअली ये वाला क्यूब बनेगा जो हमारे पास सिंपल एक ऑरेंज किस्म का है, और इसी तरह हम आगे कंटिन्यू करते जाएंगे।
तो अब चूंकि हमने डिफरेंट कलर्स के क्यूब लिए तो हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं डिफरेंट नंबर्स के साथ। जब हम उसको नंबर्स के साथ रिप्रेजेंट करेंगे तो डेसिमल में वो 0 से लेकर 256 तक वैल्यूज़ हैं हमारे पास। तो चूंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं तो ये 255 तक आ जाएंगी। लेकिन हमारे पास अगर सिस्टम जो है वो हेक्साडेसिमल वैल्यूज़ हैं तो उसके लिए हम उनको रिप्रेजेंट करते हैं एग्जैक्टली हेक्सा सिस्टम के साथ, हेक्सा नंबर्स के साथ, कि वो कौन कौन से नंबर्स आएंगे। तो इस वजह से जो 255 वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू होगी, उसको हम एफ के साथ रिप्रेजेंट करते हैं। और सेम इसी तरह हम सारे वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अगर हम ब्लैक लेते हैं तो वो कम्प्लीटली 0 होगा, और जैसे ही हम ब्लैक में चेंजेस करते हैं तो वो हमारे पास वैल्यूज़ चेंज होती जाएंगी, और जो सबसे वाइट कलर होगा हम उसको एफ के साथ रिप्रेजेंट करेंगे। तो ये मल्टीपल हमारे पास स्लाइसेस आएंगे, और हर स्लाइस में हमारे पास मल्टीपल कलर्स आएंगे। फॉर मोस्ट ग्राफिक इमेज यूज फॉर इंटरनेट एप्लीकेशन, अ सेट ऑफ 216 color has been selected to represent safe color which should be reliably displayed on a computer monitor। तो हम जो मोस्टली कलर के जो शेड्स हैं वो 216 लेते हैं, और उसकी वजह ये है कि ये जो ब्लैक हमारे पास जो चेंजेस आ रही हैं इसको रिप्रेजेंट करने के इतने कोई फ़ायदे नहीं होते, और इसमें और भी हमारे पास दरमियान में कुछ ऐसे वैल्यूज़ हैं, शेड्स हैं, जिनको रिप्रेजेंट करने के कोई फ़ायदा नहीं है। इस वजह से हम वो रिमूव कर लेते हैं, तो हमारे पास 216 कलर्स आ जाते हैं। सो 216 कलर सेफ RGB कलर्स हैं हमारे पास, और ऑल द ग्रे कलर इन 256 RGB सिस्टम, ये टोटल हमारे पास जो 256 कलर्स हैं और उसकी रिप्रेजेंटेशंस आ जाएगी। अब हम करते ये हैं कि RGB कलर सिस्टम तो हमें समझ आ गई है, लेकिन जब हम उसको SMY कलर मॉडल में, या हम उसको देखना चाहते हैं कि SMY कलर मॉडल जो है वो किस तरह काम करेगा, तो उसका सिंपल मैकेनिज़्म ये है कि हम उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं SMY। अगर हम एक कॉलम के फॉर्म में लेते हैं, मैट्रिक्स की फॉर्म में लेते हैं, तो वो इक्वल होगा 111 माइनस RGB की वैल्यूज़ जो भी होंगी। तो हमारे पास ये जो वैल्यूज़ जो भी आएंगी, इनसे अगर हम सब्ट्रैक्ट करते हैं 1, और तो वो हमारे पास SMY की वैल्यूज़ आ जाएंगी। उसकी वजह यह है कि हम यहाँ पर जब देखते हैं कि हम क्योंकि मूव कर रहे होते हैं डायरेक्शन में, और ये हमारे पास कलर्स डिफ़ाइन करते हैं, अगर हम रेड और ग्रीन और ब्लू को कंबाइन करते हैं यहाँ से, तो क्योंकि ये हमें एक कलर बताएगा, तो हम सिंपली उससे सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास C और M और Y की वैल्यूज़ आ जाएंगी, अगर हमने डिफरेंट वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना होगा। और सेम इसी तरह CMYK के लिए हमारे पास ब्लैक कलर हम उसमें ऐड कर लेते हैं। तो ये सिंपल मॉडल ये है कि RGB से जब हम SMY को आइडेंटिफाई करना चाहें तो बहुत इजीली हम कर सकते हैं, हमने सिंपल उसको सब्ट्रैक्ट करना होता है। अब हम आते हैं HSI कलर की तरफ, कि अगर हमारे पास HSI कलर मॉडल है तो अगर हम इनको रिप्रेजेंट करते हैं तो वो किस तरह होगा, क्योंकि ये टोटली डिफरेंट है हमारे पास जो ये बाकी सिस्टम है। उसकी वजह ये है कि ये जो वैल्यूज़ हैं इनको क्वांटिफाई करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम इसको रिप्रेजेंट बड़ी मुश्किल से करते हैं, उसका एक ख़ास मैकेनिज़्म है। तो बहुत सारे हैं, हम उनमें से किसी एक को लेंगे। तो ह्यू एक्चुअली क्या है, इट रिप्रेजेंट द dominant wavelength in the mixture of colors. So when we look at the secondary color, which is a mixture of different primary color, there will be one wavelength which is dominant one. Dominant wavelength and the overall sensation of the color particular secondary color will be determined by the dominant wavelength. अब हम क्योंकि ह्यू को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, और ये नॉर्मली हमारे जो परसेप्शन है आई की वो इन 3 वैल्यूज़ की बेसिस पर होती है कलर की। तो ह्यू एक्चुअली क्या होगा, वो कलर जो डोमिनेंट कलर है, क्योंकि जब हम कंबाइन करेंगे कोई 3 कलर्स को तो उनमें से कोई एक कलर जो है वो डोमिनेंट होगा। और नॉर्मली
जब हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि जब हम परसेप्शन के जो सेंसर्स हैं वो मोस्टली रेड कलर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो ज़्यादा रेड कलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो उनकी कैपेबिलिटीज़ हैं ज़्यादा जो हमारे पास कॉन्स हैं वो मोस्टली रेड कलर की डिस्टिंग्विशिंग के लिए है। तो हम जो ये वैल्यूज़ हैं ये मोस्टली ह्यू की वैल्यू हम रेड की बेसिस पर करेंगे। आगे हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे उसको डिटेल से। उसके बाद हमारे पास आ जाता है सैचुरेशन। Whenever we talk about the particular color red, there may be various shades of red. So the saturation indicates the purity of that particular color of the in other words, what is the amount of light which has been mixed to that particular color to make it diluted one. अब saturation हम ये देखेंगे कि अगर एक कलर है तो वो कलर हमारे पास कितना प्योर कलर है, उसमें कितने हमारे पास उस समय हमने वाइट कलर ऐड किया हुआ है ताकि हम उसको लाइट करें। तो हम सैचुरेशन में सिंपल ये वैल्यू देखते हैं कि ये जो कलर है ये कितना नियर टू इट्स ओरिजिन है। और उसके बाद हमारे पास ब्राइटनेस आ जाएगा। तो ब्राइटनेस जो है वो टोटली हमारे पास डिपेंडेंट होता है, ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट है, हम उसको कितना ब्राइट करना चाहते हैं, और ये एक एक्रोनोमिक नोटेशन के तौर पर हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब क्योंकि हम 3D कलर्स में बात कर रहे हैं, 3 कलर्स बात कर रहे हैं, तो इस वजह से हम इसको 3D पोलर कोऑर्डिनेट कलर स्पेस कह सकते हैं। दिस स्पेस यूजुअली सिलेंड्रिक, हमने ये देखा ऑलरेडी कि हमारे पास क्योंकि सिलेंड्रिक सिचुएशन में होगा। तो अब हमने ये देखा कि ह्यू जो है वो वेवलेंथ है प्योर कलर अब्जॉर्ब इन द सिग्नल, कि जो कलर है वो कितना उसमें अब्जॉर्ब हो रहा है, जो ओरिजिनल कलर है वो कितना अब्जॉर्ब हो रहा है। एंड डिस्टिंग्विश रेड, येलो एंड ग्रीन एटसेट्रा। More than 400 hues can be seen by the human eye. तो ये सबसे अहम बात है कि हम ऑलमोस्ट मोर देन 100 ह्यूज जो चेंजेस हैं वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह जो सैचुरेशन है वो डिग्री ऑफ डाइल्यूशन है कि उसमें हमने वाइट कलर कितना ऐड किया है। तो द इनवर्स ऑफ द क्वांटिटी ऑफ वाइट प्रेजेंट इन द सिग्नल। A pure color has 100% saturation. The white and the gray have 0 saturation. तो हमने ये ऑलरेडी देखा कि हम सैचुरेशन में क्या देखते हैं कि उसमें कितना वाइट कलर हमने ऐड किया हुआ है। डिस्टिंग्विश रेड फ्रॉम अ पिंक, मेरीन ब्लू फ्रॉम अ रॉयल ब्लू एटसेट्रा। हम इसको जब डिस्टिंग्विश करते हैं तो वो सिंपली सैचुरेशन की बेसिस पर करते हैं। अबाउट 20 सैचुरेशन लेवल आर विजिबल पर ह्यू। तो क्योंकि हम मोर देन 400 ह्यूज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं तो हर एक ह्यू के लिए 20 सैचुरेशन लेवल्स को हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेम इसी तरह ब्राइटनेस है, अमाउंट ऑफ लाइट एमिटेड। हम ये देखते हैं कि कितने उसमें जो लाइट है वो उसकी इमिटेशन की वैल्यू क्या है। डिस्टिंग्विश द ग्रे लेवल्स, और हम उसमें जो ग्रे लेवल्स हैं उसको आइडेंटिफाई करते हैं। एंड द ह्यूमन आई कैन परसीव अबाउट 100 लेवल्स। तो क्योंकि हमें ये पता है कि ग्रे लेवल्स जो हैं वो चंद 100 लेवल्स तक हम जा सकते हैं, तो इस वजह से जो ब्राइटनेस का लेवल है वो भी ऑलमोस्ट 100 लेवल्स हैं। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम HSI को लेते हैं तो HSI को हम कैसे डिराइव करेंगे RGB के लिए, क्योंकि हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं नॉर्मली RGB में। जब हम इमेज लेते हैं, प्रिंट करते हैं या उसको शो कराते हैं, तो इस शो कराने के लिए हमें RGB की ज़रूरत पड़ेगी। तो अब हम इनको कन्वर्ट कैसे करेंगे, ये जो वैल्यूज़ हैं हम इनको कैसे लेकर जाते हैं RGB में, या RGB को हम HSI में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। द ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ RGB कलर स्पेस टू ह्यू, सैचुरेशन एंड ब्राइटनेस कलर स्पेस इज एसेंशियली अ कन्वर्जन from a set of rectangular coordinate to a set of 3D polar cylindrical coordinates. अब हम इसमें
करते सिंपली ये हैं कि क्योंकि RGB जो है हमारे पास 3D कोऑर्डिनेट में आ रहा है, तो हम इसको कन्वर्ट करते हैं एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में। हम एक सिलेंड्रिकल फॉर्म में कैसे करते हैं, हम इसको नेक्स्ट स्लाइड्स में देखते हैं। लेकिन ये जो कन्वर्जन है ये नॉर्मली बहुत ज़्यादा टाइप्स की हो सकती हैं। HSI भी हो सकते हैं हमारे पास, HLS भी हो सकते हैं, HSV भी हो सकते हैं, IHS भी हो सकते हैं। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे पास मेथड्स हैं। अब इनमें से कोई एक हम सेलेक्ट करते हैं और हम उसको आगे कन्वर्ट करते हैं। तो हम नॉर्मली, क्योंकि हमने HSI को अभी तक डिस्कस किया और हम समझें उसको, तो अब हम HSI मॉडल को ही आगे लेंगे और इसको RGB के लिए कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। सो इसके लिए ज़रूरी है कि हम पहले जो हमारे पास मॉडल था, जो RGB मॉडल हमने लिया था क्यूबिक फॉर्म में, हम उसको रोटेट करें। तो जब हम उसको रोटेट करेंगे तो हम इजीली वो जो HSI मॉडल है उसको डिपेक्ट कर सकेंगे, उसको समझ सकेंगे। तो ये एग्जैक्टली सेम हमारे पास मॉडल है, लेकिन हमने RGB की जो वैल्यूज़ थी, जो हमारे पास इधर हमने उसको रिप्रेजेंट किया था, ये जो हमारे पास यहाँ है, तो हम इसको सिंपली रोटेट करते हैं। इसका मतलब ये कि अगर हम इसको रोटेट करें इस डायरेक्शन में, तो ब्लैक जो है वो बिल्कुल बॉटम पे आ जाएगा और वाइट हमारे पास टॉप पे आ जाएगा। अब हमने इसको जब रोटेट किया तो ब्लैक हमारे पास बॉटम पे आ गया और वाइट जो है वो टॉप पे आ गया। तो अब हम HSI के लिए, क्योंकि हमारे पास डिफरेंट वेरिएबल्स हैं S और I और H के, तो हम इनको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे कि अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये हमारे पास एक पॉइंट है, इसके लिए हम S की वैल्यूज़ आइडेंटिफाई करना चाहते हैं। तो S की वैल्यूज़ क्या होंगी कि जब हम इस लोकेशन पर हैं, तो इस लोकेशन के लिए जो कलर हम लेते हैं, वो कलर की जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि हम स्टार्ट करते हैं एस में, क्योंकि हम सैचुरेशन देखते हैं कि उसमें कितना वाइट कलर ऐड हुआ है। तो वो वाइट कलर ऐड होने के लिए जो हमने ये जो हमारे पास लाइन है ब्लैक टू वाइट, तो हम इससे इसका डिस्टेंस आइडेंटिफाई करते हैं। तो जब हम ये डिस्टेंस आइडेंटिफाई करेंगे तो इसको हम कहेंगे कि ये हमारे पास S की वैल्यू है। तो हमारे पास S की वैल्यू जो भी पॉइंट होगा हम वो लेंगे जो ब्लैक और वाइट के दरमियान जो हमारे पास लाइन आ रही है उससे कितना डिस्टेंस बन रहा है। तो ये सैचुरेशन होगी उसकी, क्योंकि ये जो सैचुरेशन है ये लाइन एक्चुअली शेड की फॉर्म में होगा। तो हम ये देखेंगे कि इससे इसका डिस्टेंस कितना बन रहा है, तो ये हमारे पास S की वैल्यू आ जाएंगी। अब अगर हम I की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो I के लिए हम क्या करेंगे कि जो इसका डिस्टेंस है वाइट और ब्लैक के दरमियान, कोई भी हम कलर जब लेते हैं तो कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उसका वाइट और ब्लैक के दरमियान कितना डिस्टेंस बन रहा है, वो कैसे होगा कि अगर हमारे पास ये पॉइंट आइडेंटिफाई हो गया S का, तो हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास इधर वैल्यू आ रही है वो क्या होगी। ठीक है, और सेम हम इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस वाइट के लिए। तो ये हमारे पास जो एरिया होगा हम इसको I के साथ रिप्रेजेंट करते हैं कि ये जो I की वैल्यू है हम इसको यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब ये हमारे पास पॉइंट है, इस पॉइंट का हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो S की वैल्यू हमारे पास ये आ जाएंगी और I की वैल्यू हमारे पास यहाँ से जो वैल्यू या जो डिस्टिंग्विश होगा वाइट से या ब्लैक से हम उसको आइडेंटिफाई करेंगे। क्योंकि हमने ये कहा था कि ये ब्राइटनेस के लेवल को, ब्राइटनेस हम इसमें देखते हैं, इंटेंसिटी देखते हैं। तो इंटेंसिटी जब हम चेक करेंगे तो वो हमने ब्लैक से या वाइट से आइडेंटिफाई करना है कि वो क्या होगी, उसकी इंटेंसिटी क्या होगी। अब सेम हमने अगर H के लिए वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है तो जो कि ह्यू है, और हमने ये देखा था कि ह्यू जो है वो एक्चुअली कलर की इंटेंसिटी है कि वो कलर जो है वो कितना हमारे पास प्योर आ रहा है, वो उसमें कौन सा डोमिनेंट कलर आ रहा है हमारे पास।
तो अब उसके लिए हम क्या करते हैं कि हम अगर इसको कन्वर्ट करते हैं, सिंपली ये जो हमारे पास ब्लैक और वाइट के दरमियान जो लाइन है, इसका हम साइन जो कलर है उसके साथ हम उसका कम्बिनेशन लेते हैं। तो इस सिचुएशन में अगर हम कोई पॉइंट लेंगे तो वो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि इस पॉइंट का जो कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू आ रही है साइन के लिए वो क्या होगी। तो जिस तरह हमने ऑलरेडी कहा कि नॉर्मली हम रेड कलर को इजीली डिस्टिंग्विश कर सकते हैं और उसके लिए जो हमारे पास सेंसर्स हैं वो ज़्यादा होते हैं। इस वजह से हम करेंगे ये कि हम आर की जो वैल्यूज़ हैं उससे उसकी ह्यू को कैलकुलेट करते हैं। अब अगर इस सेम डायग्राम को हम रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागोनल रिप्रेजेंटेशन में, तो हम सिंपली ये करेंगे कि जो वाइट और ब्लैक डॉट्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, उनको हम बिल्कुल मिड पे रखते हैं। मतलब ये कि ब्लैक और वाइट हमारे पास मिड में आ गई और जो बाकी कलर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं हर एक कॉर्नर के लिए जो हेक्सागोनल का कॉर्नर है। अब हम अगर रेड की जो एंगल है वो आइडेंटिफाई करते हैं ग्रीन के लिए, तो वो 120 होगा। तो ये जो एंगल हमारे पास है 120 आएगा। सेम इसी तरह ग्रीन से ब्लू के लिए हमारे पास 120 आएगा और ब्लू से रेड के लिए 120 आएगा। रेड से येलो के लिए हमारे पास 20 डिग्री के चेंजेस आएंगी। तो हम अगर अब कोई कलर उसका ह्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो उसके लिए हमें क्या करना होगा कि जो भी हमने पॉइंट लिया है उसका एंगल, उसका जो थीटा है वो आइडेंटिफाई करना होगा कि रेड से उसका थीटा के वैल्यू क्या बन रही है। तो हम सिंपली यहाँ से हम क्या करते हैं कि हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं हेक्सागोनल फॉर्म में। जब हम हेक्सागोनल फॉर्म में आ गए हैं तो अब हम उस पॉइंट को कहीं पर मैप कर लेते हैं। तो जब हम उसको मैप कर लेंगे तो हम रेड से उसका ह्यू की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे कि वो उसकी थीटा की वैल्यू क्या आ रही है। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हम इसको हेक्सागोनल फॉर्म में लें, हम इसको सर्कुलर फॉर्म में भी ले सकते हैं और हम इसको ट्रायंगल फॉर्म में भी ले सकते हैं। तो इन सब की वैल्यूज से हमारे पास जो डिफरेंसेस हैं वो आएंगे, क्योंकि उसकी वजह यह है कि यहाँ पर जो येलो कलर है वो काफ़ी नियर होगा, उसकी जो इंटेंसिटी वैल्यूज़ हैं वो एज़ कम्पेयर टू रेड इतनी नहीं होंगी। तो इस वजह से हम सिंपली जो एंगल हमारे पास यहाँ पर बनेगा वो कम्प्लीटली डिफरेंट होगा अगर हम ट्रायंगल की फॉर्म में जाते हैं। So hue and saturation is the HSI color model. The dot is an arbitrary color point. The angle from the red axis gives the hue, and the length of the vector is the set of is the saturation. The intensity of all the color in any of these plane is given by a position of the plane and on the vertical intensity axis. अब अगर हम इस की इंटेंसिटी जो आई की वैल्यूज़ हैं इसको आइडेंटिफाई करना चाहेंगे तो हम जो मैंने आपको यहाँ पर बताया कि जो हमारे पास एंगल है रेड एक्सिस का वो हमें ह्यू बताएगा, जो लेंथ ऑफ द वेक्टर है वो हमें सैचुरेशन बताएगा, और इंटेंसिटी जो है ऑफ कलर ऑफ एनी प्लेन पोजीशन ऑफ द प्लेन इन द वर्टिकल इंटेंसिटी एक्सिस। तो जो आई की वैल्यूज़ हैं वो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं सिंपली कि ये एक डायमंड शेप में है, तो डायमंड शेप के लिए जो सारी वैल्यूज़ आएंगे, जो यहाँ से हम आगे प्रोसीड करते हैं इसको लेते हैं, तो जब हम इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो मल्टीपल कलर्स जो हैं वो मल्टीपल स्लाइसेस में आएंगे। अगर हमने इंटेंसिटी की वैल्यू रखनी है 0.75 तो वो इस लेवल पर आएगी, ठीक है। और इसके लिए जब हम H की वैल्यू आइडेंटिफाई करेंगे तो वो रेड से इसका एंगल क्या बनेगा वो हम लेंगे, और जो S की वैल्यू है वो इस एंगल के अंदर कौन सा पॉइंट लेना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल ये पॉइंट है तो वो इसकी जो I की वैल्यू है वो S की वैल्यू जो है वो यहाँ से हम
आइडेंटिफाई कर सकते हैं उसकी सेचुरेशन क्या होगी, क्योंकि जो हम उसमें कितना डाइल्यूशन डाल रहे हैं, उसमें कितना डाइल्यूट कर रहे हैं। अगर सेम हम यहाँ से देते हैं तो यहाँ पर हम ब्लैक कलर को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं, क्योंकि जब हम जाते हैं ब्लैक के लिए तो हमारे पास ये वाली वैल्यूज़ आ रही हैं, क्योंकि हम ब्लैक साइड पर जा रहे हैं तो हमें जो सेंटर है वो ब्लैक विजिबल होगा। अब सेम इसी तरह हम उसको सर्कुलर के लिए भी कर सकते हैं। सर्कुलर के लिए हमारे पास अगर हम वैल्यूज़ लेते हैं आई की 0.75 तो हमारे पोजीशन जो है वो इधर आ जाएगी, और अगर हम आई की वैल्यू लेते हैं 0.5 तो हम इस लेवल पर आ जाते हैं। तो आई की वैल्यूज़ हम इस इधर से कंसिडर करेंगे। एच की वैल्यू रेड से हमारे पास क्या उसका एंगल बन रहा है, और एस की जो वैल्यू है वो हमारे पास वाइट और ब्लैक के दरमियान जो लाइन है उससे उसका डिस्टेंस बनेगा। तो ये बिल्कुल बेसिक हमने कन्वर्जन किया। अब इसके लिए हम उसका जो फार्मूले हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं। तो फार्मूला हमारे पास है H इज इक्वल टू थीटा इज it will be theta if B is less than or equal to G, and it will be 360 minus theta if B is greater than G। तो B हमारे पास B कलर है और G जो है G कलर है। तो RGB में अगर हमारे पास B और G के दरमियान हम होंगे तो थीटा लेंगे, और B और G B जो है वो ग्रेटर होगा G से, तो फिर उस सिचुएशन में हम उसको माइनस के सिचुएशन में लेते हैं। और उसकी बेसिक वजह ये है कि क्योंकि हम जो B है हमारे पास ब्लू और ग्रीन, इससे हम आइडेंटिफाई करते हैं कि हम कौन से लोकेशन पर हैं। तो हम इन वैल्यूज़ की बेसिस पर फार्मूलाज डिराइव करते हैं। फिर सेम अगर हम S की वैल्यू आइडेंटिफाई करना चाहते हैं सेचुरेशन की, तो वो होगी 1-3/RGB, और सब की समेशन है, और उसके बाद हम मिनिमम आइडेंटिफाई करते हैं RGB का, तो उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर हम I की वैल्यू आइडेंटिफाई करते हैं जो कि इंटेंसिटी है और ब्राइटनेस है, तो वो हमें 1/3 इंटू R प्लस G प्लस B, हम इसकी सिंपल समेशन करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि हम थीटा ले रहे हैं तो ये थीटा एक्चुअली क्या है, थीटा इज इक्वल टू कोसाइन माइनस 1 एंड 1/2 जो हम R माइनस G लेते हैं प्लस R माइनस B लेते हैं, और सेम डिवाइडेड बाय R माइनस G स्क्वायर प्लस R माइनस B इंटू G माइनस B, और उसका स्क्वायर रूट लेते हैं। तो ये हमारे पास बेसिक फार्मूला आ गया। अब अगर हम कन्वर्जन करना चाहते हैं HSI से RGB में, क्योंकि यहाँ पर हम कर रहे थे RGB से HSI में, तो यहाँ पर हम अगर इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं HSI से RGB में, तो फिर इस सिचुएशन में हम डिफरेंट सेक्टर्स को आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अगर सेक्टर R और G के दरमियान में है, इसका मतलब ये कि रेड और ग्रीन के दरमियान में है, तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट फार्मूला होगा। और अगर हम G और B के दरमियान में है तो उसके लिए अलग फार्मूला होगा, और अगर B और R के दरमियान में है तो उसके लिए अलग फार्मूला बनेगा। तो अगर डिग्री हमारे पास 0 है एंड लेस देन और इक्वल टू H, और H उसके ह्यू की वैल्यू है इज लेस देन और इक्वल टू 120, तो फिर हमारे पास फार्मूला बनेगा B के लिए I इंटू 1 माइनस S, और R के लिए 1 इंटू 1 प्लस S कोसाइन H एंड कोसाइन 60 डिग्री माइनस H, और G के लिए हमारे पास वैल्यू आएगी 3I माइनस R प्लस B। और फिर अगर हम इस एरिया में हैं जहाँ 120 डिग्री H इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 120 डिग्री एंड लेस देन 240 डिग्री, तो उसके लिए हमारे पास G की वैल्यूज़ हम ऐसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस फॉर्मूले के थ्रू, R की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के थ्रू, और B की वैल्यूज़ इस फॉर्मूले के थ्रू। सेम अगर H हमारे पास ह्यू की वैल्यू आ रही है ग्रेटर देन और इक्वल टू 240 और लेस देन और इक्वल टू 360, तो फिर हमें B की वैल्यू हम इस फॉर्मूले के थ्रू आइडेंटिफाई कर सकते हैं, G के इसके साथ, और R की हमारे पास इसके साथ आ जाएंगे।
Now HSI components of image for hue, saturation and intensity. अगर हम hue, saturation और intensity के वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, उसके कंपोनेंट्स आइडेंटिफाई करना चाहते हैं, तो ये हमारे पास ह्यू के इंटेंसिटी वैल्यूज़ आ जाएंगे। वो कंपोनेंट्स क्या होंगे वो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सैचुरेशन के हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं, और जो इंटेंसिटी है या हमारे पास सिंपल वैल्यूज़ आ रहे हैं ब्राइटनेस के, तो हम यहाँ से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। और ये हमारे पास जो कलर इमेज का क्यूब है। अब हम प्रॉपर्टीज़ देखते हैं HSI के, कि अगर हम कुछ वैल्यूज़ को कांस्टेंट करते हैं और कुछ वैल्यूज़ को हम वेरिएबल रखते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या इफ़ेक्ट्स पड़ते हैं किसी इमेज के ऊपर। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि अगर हम H और I की वैल्यूज़ को कांस्टेंट करते हैं और हम सिचुएशन को चेंज कर रहे हैं, तो उस सिचुएशन में हमारे पास इमेज के ऊपर क्या असर पड़ेगा। अब हमने ये देखा था कि सिचुएशन जो है वो एक्चुअली हम उसके डाइल्यूशंस को देखते हैं कि हम लाइट हम उसमें कितने लाइट के इफ़ेक्ट्स डाल रहे हैं, हम उसको कितना चेंज कर रहे हैं। तो हम H की वैल्यू 0 रखते हैं और I की वैल्यू रखते हैं 128। तो जब हम S की वैल्यू रखते हैं 255, इसका मतलब ये हुआ कि इसकी सैचुरेशन की वैल्यू 255 है और इसको हम कम करते जा रहे हैं 200। मतलब यहाँ पर वाइट कलर जो है वो सबसे ज़्यादा हम ऐड कर रहे हैं, फिर हम उसको कम करते जा रहे हैं, तो हमारे पास जो इमेज है, जो कलर है, वो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो रहा है। इनविजिबल तो नहीं, लेकिन उसमें हमारे पास वो कुछ कमी आ रही है, उसमें जो विजिबिलिटी है उसमें कम आ रहा है। और उसकी वजह यह है कि जब हम लाइट के इफ़ेक्ट को कम करते हैं, ब्राइटनेस को कम करते हैं, तो जो वाइटनेस है उसको कम करते हैं, तो वो जो कलर है वो डल होता जाएगा। अगर हम इसके बाद जो ब्राइटनेस है उसको चेंज करते हैं, तो हमारे पास क्या इफ़ेक्ट होगा। अगर हम H की वैल्यू रखते हैं 0 और S की वैल्यू रखते हैं 255, तो इस सिचुएशन में हम 100% जो सैचुरेशन है उसको ले रहे हैं और जो इंटेंसिटी है, ब्राइटनेस है, उसको कम करते जा रहे हैं। तो जब हम लेफ़्ट से राइट की तरफ जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो इमेज है ये एक लेवल पर डार्क हो जाता है, और उसकी वजह ये है कि जो वो ब्राइटनेस है, जो इंटेंसिटी वैल्यू है, हम उसको कम करते जा रहे हैं। अब अगर हम ह्यू के केस में चेंजेस ला रहे हैं और S और I को हम कांस्टेंट रख रहे हैं, तो इस सिचुएशन में क्या होगा कि जब हम चेंज करते जाएंगे तो हम देखते हैं कि जो कलर हैं वो कम्प्लीटली डिफरेंट होते जा रहे हैं। और उसकी वजह यह है कि ह्यू जो है वो डोमिनेंट बताता है, डोमिनेंसी बताता है कलर की, कि कितना कौन सा वेवलेंथ जो है वो ज़्यादा डोमिनेंट होगा। तो यहाँ पर हम बताते हैं कि कोई भी वेवलेंथ जो है वो डोमिनेंट नहीं होगा, 0 होगा आर की जो वैल्यू है, क्योंकि हम ह्यू जो है वो R से स्टार्ट करते हैं। तो जब हम R से स्टार्ट करते हैं तो 0 होगा तो रेड होगा, लेकिन जब हम 50 पर जाते हैं तो वो कम्प्लीटली डिफरेंट येलोइश कलर बन जाएगा। और इसी तरह H को अगर हम 100 रखते हैं तो वो ग्रीन पे चला जाता है, और H को 150 रखते हैं तो वो ब्लू पे चला जाता है। अगर आपको याद है तो हमने यहाँ पर ये देखा था कि क्योंकि हम रेड से स्टार्ट करते हैं और रेड थीटा 0 होगा, तो वो उस सिचुएशन में रेड होगा। अब हम नेक्स्ट मॉडल देखते हैं कि अगर हम इन की कम्बिनेशंस देखते हैं, HSI की, ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी की, जो हमने यहाँ पर ऑलरेडी देखा, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि अगर हम सिर्फ ह्यू को चेंजेस ला रहे हैं ह्यू की सिचुएशन में, तो ये अगर ओरिजिनल इमेज है तो हमारे पास ह्यू की चेंजेस आएंगी, तो हमारे पास इमेजेस कुछ इस तरह नज़र आएंगी। और अगर हम सिंपल सैचुरेशन को चेंज करते हैं तो ये वाली वैल्यूज़ हमारे पास आएंगी, और अगर हम इंटेंसिटी को चेंज करते हैं तो हमारे पास सेम इमेज है और उसमें हमारे पास विजिबिलिटी कम्प्लीटली डिफरेंट हो जाएगी। इसी तरह हम RGB की वैल्यूज़ के साथ अगर हम चेंजेस लाते हैं तो वो भी इसी तरह ही होगा कि हम सिंपल अगर इस यहाँ से हम इमेज लेते हैं और हम उसमें चेंजेस लाते हैं HSI के कंपोनेंट्स की, तो हम सिंपल उसमें जो इफ़ेक्ट्स हैं वो बहुत इजीली विजुलाइज कर सकते हैं।
अब हमने ये देखा कि जो कलर इमेज प्रोसेसिंग है हम उसको मल्टीपल मेथड्स में कर सकते हैं, फॉल्स कलर्स में और ट्रू ओरिजिनल कलर्स में, या उसको हम फुल कलर भी कहते हैं। तो हम अब इसको थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि हम इसके ऊपर कौन कौन से प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सो सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग इज असाइन कलर टू अ मोनोक्रोनिक इमेज। ये हमने ऑलरेडी देखा था कि हम सूडो कलर इमेज में क्या करते हैं कि जो ग्रे स्केल इमेजेस हैं या कोई मोनोक्रोनिक इमेजेस हैं जो कि एक लेवल में बताई जाती हैं, तो हम उसको कोई कलर असाइन करते हैं। और वो कलर कैसे असाइन करते हैं? इंटेंसिटी स्केलिंग के थ्रू करते हैं हम। सो ग्रे लेवल टू कलर ट्रांसफॉर्मेशन सिंपली हम करते हैं कि हम अगर ग्रे लेवल इमेजेस हैं तो हम उसको कैसे ट्रांसफॉर्म करते हैं कलर इमेजेस में। उसके लिए हमारे पास स्पेशल डोमेन अप्रोच है, 3 डिफरेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं उसके अंदर, और फ्रीक्वेंसी डोमेन अप्रोच है जिसमें 3 डिफरेंट फिल्टर्स हो सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास आता है फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग, और कलर इमेज प्रोसेसिंग के लिए हम कलर इन्हांसमेंट करते हैं और रिस्टोरेशन करते हैं, और सेम इसी तरह हम कलर के कंपनसेशन करते हैं। ठीक है, अब अगर हम सूडो कोड कलर इमेज प्रोसेसिंग करेंगे तो वो हम कैसे उसको कलर असाइन करते हैं? तो वो कलर असाइन करने के लिए हम सिंपली अगर उसको ड्रॉ कर लें प्लॉट के थ्रू, तो हम बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि कौन से कलर असाइन होने चाहिए। इसको हम थ्रेशोल्डिंग भी कह सकते हैं कि हम एक थ्रेशोल्ड बनाते हैं और हम उस थ्रेशोल्ड वैल्यूज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। सो द सूडो कोड कलर यूज्ड इन colorizing a gray level image do not represent the original true color if there were originally a color image. अगर तो वो कोई कलर इमेज है तो हम ओरिजिनल कलर इमेजेस कलर्स को नहीं शो कराते, हम उसको कन्वर्ट कर देते हैं। लेकिन नॉर्मली हम इसको यूज़ करते हैं जहाँ पर मोनोक्रोनिक इमेजेस हों, जहाँ पर एक लेवल के कलर्स हों या इंटेंसिटी में सिर्फ चेंजेस आ रही हों। तो इसकी एग्जांपल ग्रे लेवल इमेजेस हो सकती हैं। तो अब हमने ये देखा कि x और y के कोऑर्डिनेट के साथ हम RGB की वैल्यूज़ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो हमें ये पता है कि हम x और y को रिप्रेजेंट करते हैं, R के साथ x को और G को y के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और हमारे पास जो ग्रे लेवल है हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं किसी 0 से लेकर L-1 लेवल तक। ठीक है, अब कोई भी हमारे पास फंक्शन है, इमेज है जो कि f ऑफ x y हो सकता है, तो वो कोई प्लेन होगा, कोई प्लेन हमारे पास आ रहा है, कोई लेवल है जो ग्रे लेवल का। ठीक है, तो अब ये ग्रे लेवल हमारे पास आ गए और ये हमारे पास ऑब्जेक्ट हैं। ठीक है, कोई एक हमने इमेज लिया, कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें हमारे पास वैल्यूज़ आ रही हैं और हमने उसको ड्रॉ कर लिया कि उसके वैल्यूज़ क्या आ रही हैं। तो अगर तो वो इस लेवल से अबव हैं तो हम इसको एक कलर असाइन कर देंगे। ठीक है, और इस लेवल से बिलो हैं तो हम उसको दूसरा कलर असाइन कर देंगे। तो ये सिंपल अगर 2 कलर्स की बात हम कर रहे हों, लेकिन अगर हम मल्टीपल कलर्स की बात करेंगे तो फिर हर एक स्लाइस के साथ हम एक एक कलर असाइन करेंगे। तो ये सिंपल हम सूडो कलर इमेज प्रोसेसिंग करते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि अगर मोनोक्रोनिक इमेज है और हम देखते हैं कि यहाँ बहुत ज़्यादा जो डिटेल है वो विजिबल नहीं है, क्योंकि ह्यूमन आई जो है वो सर्टन लेवल तक ग्रे लेवल्स इमेजेस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं या उसकी जो शेड्स हैं उसको आइडेंटिफाई कर सकता है। लेकिन मशीन्स के साथ हम उन शेड्स को आइडेंटिफाई करते हैं, उसके जो वेरिएशंस हैं उनको आइडेंटिफाई कर लेते हैं। तो जब हम वो आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसको मल्टीपल कलर्स असाइन कर देते हैं, हर एक लेवल को डिफरेंट कलर असाइन कर देंगे। तो अब हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो डिटेल थी जो यहाँ पर विजिबल नहीं थी, इस कलर सूडो को कलर में हम उसको विजुलाइज कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो हम कोई 3 लेवल्स में कन्वर्ट करते हैं f ऑफ x y को, क्योंकि जो ये कलर हैं ये हमारे पास x और y का कोई शेड होगा, ग्रे लेवल का कोई शेड होगा। तो अब हम इसको क्योंकि RGB में कन्वर्ट करते हैं तो इस वजह से हमारे पास जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो RGB में होनी चाहिए।
Perform 3 independent transformation on the gray level of any input pixel. The 3 results can be serve as a red, green and blue components of the color image. क्योंकि हमारे पास color image के 3 components हैं, तो इस वजह से हमारे पास जब gray level image आएगा तो हम उसको f of r एक्स वाई आ जाएगा, एफ ऑफ जी एक्स वाई आ जाएगा और एफ ऑफ बी एक्स वाई आ जाएगा, क्योंकि जब हम आर जी बी वैल्यूज़ को लेंगे। अब अगर हम वैल्यू लेते हैं एग्जैक्टली सेम एफ ऑफ आर, उसमें हम कोई चेंजेस नहीं लाते, वो वही रखते हैं जो कि ओरिजिनल इमेज में है, और हम यहाँ पर ग्रे स्केल इमेज लेते हैं लेफ़्ट हैंड साइड पे, और हम इसको कन्वर्ट करना चाहते हैं कोई सूडो कलर में। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हमने अगर जी के वैल्यूज़ रखी कि कोई भी वैल्यू जो इंटेंसिटी वैल्यू जो कि 0.33 से ज़्यादा होगा तो हम उसको जी की वैल्यू असाइन करेंगे, और अगर हमारे पास कोई भी वैल्यू जो 0.11 से में होगा उसमें लाई करेगा तो हम उसके लिए बी की वैल्यू असाइन करेंगे। तो हम सिंपली आरजीबी वैल्यूज़ को डिस्टिंग्विश कर सकते हैं। अब इसका यूज़ क्या होगा, हम इसको कैसे यूज़ कर सकते हैं, इसकी सिंपल एग्जांपल ये है कि जब हम स्कैन कराते हैं नॉर्मली अपने लगेज को एयरपोर्ट्स में या किसी और ऐसी जगह पर जहाँ पर सर्विलियंस सिस्टम है और वो देखना चाहते हैं कि लगेज में कोई ऐसा मवाद तो नहीं जो कि प्रोहिबिटेड है, तो उसके लिए हम सिंपली क्या करते हैं कि हम जब एक्सरे इमेजेस लेते हैं, क्योंकि एक्सरे इमेजेस जो हैं वो नॉर्मली ग्रे स्केल इमेजेस होती हैं, तो हम उस ग्रे स्केल इमेजेस में लेवल्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हमने ये देखा कि रेड के लिए अलग चैनल होगा, ग्रीन के लिए अलग होगा और ब्लू के लिए हमारे पास अलग चैनल होगा। अब इस सिचुएशन में जब हमारे पास डिफरेंट लेवल्स आ जाएंगे तो हम ये बता सकते हैं कि इस लेवल जब हमारे पास वैल्यूज़ होंगी कोई ख़ास, तो उसको कौन सा कलर असाइन करना है। चूँकि ये ज़ीरो से लेकर L-1 ग्रे लेवल्स आ रहे हैं, तो हम अगर कोई लाइन ड्रॉ करते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम कोई लाइन ड्रा करते हैं इस एरिया में जो कि 0 से लेकर फॉर एग्जांपल 10 की कोई वैल्यू है, 10 वैल्यू है यहाँ पर, तो उसके लिए हमारे पास ब्लू का कौन सी इंटेंसिटी होगी हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, और हमारे पास जो ग्रीन की कौन सी इंटेंसिटी होगी हम वो आइडेंटिफाई करेंगे, और जो हमारे पास रेड की इंटेंसिटी होगी वो आइडेंटिफाई। तो आप देख सकते हैं कि ये तीनों वैल्यूज़ डिफरेंट आ रही हैं, क्योंकि जो यहाँ पर एंगल बन रहा है वो डिफरेंट बन रहा है। तो सेम इसी तरह हम डिफरेंट जो लेवल्स हैं उसके लिए डिफरेंट कलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो अब अगर हम इसको आइडेंटिफाई करते हैं और हम इसको कलर्स देते हैं, डिफरेंट कलर देते हैं, तो हम उससे बहुत सारे जो वैल्यूबल आइटम्स हैं उनको आइडेंटिफाई कर सकते हैं और हम उसमें बहुत इजीली सेपरेशन कर सकते हैं। अगर हमें ये पता है कि जो एक्सप्लोसिव्स होते हैं वो ग्रे लेवल यहाँ से स्टार्ट होता है उसका और इस लेवल तक आता है, और हम उसको एक ख़ास कलर असाइन कर दें जो कि इस रेंज के अंदर हो, तो हम उसको बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल यहाँ पर कोई एक्सप्लोसिव है। सेम इसी तरह हम अगर मल्टीपल और कलर्स देना चाहते हैं तो हर एक लेवल के लिए डिफरेंट कलर हम असाइन कर सकते हैं। इसी तरह अगर हम ये देखना चाहते हैं कि हम मल्टीपल कलर असाइन करें और जो इमेजेस हैं वो भी मल्टीपल लेवल से आ रही हों, मतलब ये कि जो हमारे पास मोनोक्रोनिक इमेज है उसके जो लेवल्स हैं वो भी चेंज होते जा रहे हैं, तो अगर वो चेंज हो रहे हैं तो हमारे पास RGB जो हम चेंज कर रहे हैं वो भी मल्टीपल होंगे। अगर हम एक इमेज लेते हैं उसको हम कन्वर्ट करना चाहते हैं तो वो हम उसकी कन्वर्जन किस तरह होगी, और अगर हमारे पास लेवल डिफरेंट है और उसमें हम चेंजेस करते जा रहे हैं तो हम देखते हैं कि जो मोनोक्रोनिक इमेज है वो डिफरेंट होंगे, क्योंकि इसके लिए अलग से बनेगा, इसके लिए अलग से, और यहाँ पर हम अलग से डिफाइन कर रहे हैं।
अब इसके बाद आ जाता है फुल कलर इमेज प्रोसेसिंग। अगर हम फुल कलर इमेजेस ले रहे हैं तो उसमें हम क्या प्रोसेसिंग कर सकते हैं। सिंपली प्रोसेसिंग दो किस्म के हो सकते हैं इमेज प्रोसेसिंग जो फुल कलर में हो सकते हैं। एक ये है कि हम उसमें स्केलर वैल्यूज़ लें, हम उसको स्केल करते हैं पॉइंट टू पॉइंट बेसिस पर। सो प्रोसेस ईच चैनल और कलर कंपोनेंट सेपरेटली इफ द कलर इमेज वर 3 ग्रे स्केल इमेज। इस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि हर एक कलर को सेपरेटली हैंडल करते हैं, उसके ऊपर सेपरेट प्रोसेसिंग करते हैं। और इसको हम कलर ट्रांसफॉर्मेशन भी कह सकते हैं कि हम उस कलर ट्रांसफॉर्मेशन को कैसे करते हैं इंडिविजुअली हर एक पॉइंट के लिए। और दूसरा पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि हम प्रोसेस ऑल चैनल्स विद ईच पिक्सल रिप्रेजेंटेड एज अ वेक्टर। तो हम जो पिक्सल की वैल्यूज़ हैं उनको एज अ वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं, एज अ वेक्टर वैल्यूज़ रिप्रेजेंट करते हैं और हम फिर उसके बाद उसके साथ प्रोसेसिंग करते हैं। सो कलर ट्रांसफॉर्मेशन जो है वो हमारे पास डिफरेंट किस्म के प्रोसेसिंग उसमें हो सकती है। तो प्रोसेसिंग इन RGB, HSI और SMY स्पेस में अगर हम डिफरेंट कलर मॉडल्स लेते हैं तो हम उसके साथ प्रोसेसिंग जब करेंगे तो वो भी डिफरेंट होंगे। हर एक मॉडल के लिए डिफरेंट प्रोसेसिंग होगा। अब हम सिंपल लेते हैं, अगर यहाँ से हम पॉइंट टू पॉइंट प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, हर एक लेवल के साथ इंडिविजुअली प्रोसेसिंग करना चाहते हैं, तो उस सिचुएशन में क्या होगा कि ये अगर हम फुल कलर इमेजेस ले रहे हैं और हम सिंपल साइन कलर्स को रिप्रेजेंट करना चाहते हैं तो वो कैसे होगा। अगर हम मैजेंटा कलर को देखना चाहते हैं तो वो कैसे होगा, और अगर हम येलो कलर्स को लेना चाहते हैं तो वो, और सेम इसी तरह ब्लैक कलर को। तो हम वेरियस कलर्स स्पेस कंपोनेंट्स को चेंज करते जाएंगे। सेम इसी तरह अगर हम R, G और B के वैल्यूज़ को देखते हैं और इसी तरह ह्यू, सैचुरेशन और इंटेंसिटी के वैल्यूज़ को चेंज करते हैं तो उसमें क्या चेंजेस आएंगी। तो ये जब हम कन्वर्जन करते हैं RGB से HSI और HSI से CMY के, अगर डिफरेंट मॉडलिटीज़ हमारे पास हैं। इसी तरह अगर हम साथ में उसके इंटेंसिटी को चेंज करना चाहते हैं तो वो किस तरह होगा। एडजस्ट द इंटेंसिटी ऑफ एन इमेज यूजिंग कलर ट्रांसफॉर्मेशन। सो दिस इज द ओरिजिनल इमेज एंड द रिजल्ट डिक्रीजिंग इट्स इंटेंसिटी बाय 30%। तो जब हम उसकी इंटेंसिटी को 30% डिक्रीज करते हैं तो उस सिचुएशन में जो इमेज है हमारे पास वो कैसे आएगा। देन the required RGB, SMY and HSI transformation function हमारे पास क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शन डिफरेंट आएंगे RGB के लिए, तो हम उनको जो इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हैं अगर हम उसको चेंज करते हैं RGB के लिए तो वो उसका जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह आएगा। और अगर हम GMY के लिए यूज़ करते हैं तो उसकी इंटेंसिटी की वैल्यूज़ हमारे पास यहाँ से आएंगी। सेम इसी तरह HS के लिए अलग से आएंगी और I की इंटेंसिटी वैल्यूज़ अलग से आएंगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कलर कम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन। सो कम्प्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन क्या होगा। अगर हम इमेजेस को एक सर्कुलर फॉर्म में ले लें, कलर्स को एक सर्कुलर फॉर्म में ले लें, तो उस सिचुएशन में अगर हम कोई कलर लेते हैं, कोई एक पॉइंट लेते हैं तो उसका कम्प्लीमेंट क्या होगा, उसके बिल्कुल कम्प्लीटली अपोजिट वैल्यू। तो हम उसको कम्प्लीमेंट ले सकते हैं। कम्प्लीमेंट उसका रिवर्स अगर हम लेना चाहते हैं, अगर हम ग्रे स्केल में होंगे तो अगर कोई चीज़ वाइट है तो हम उसको ब्लैक कर लेते हैं, तो ये कम्प्लीटली रिवर्स होगा। लेकिन क्योंकि हम यहाँ पर RGB कलर्स की बात कर रहे हैं तो RGB में हम सिंपली उसके अपोजिट जाते हैं और अपोजिट जो भी कलर होगा हम वो ले लेंगे अगर हम इसको सर्कुलर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। So complements are basically given by subtracting one color from white or by changing a hue by 180 degree।
तो ये हमें पता है कि हम ह्यू जो है वो स्टार्ट करते हैं किसी रेड कलर से और हम उसको चेंज करते जाते हैं। तो 180 डिग्री पे जब हम जाएंगे तो वो एग्जैक्टली उसका अपोजिट होगा। अगर हम इस पॉइंट पर हैं तो 180 डिग्री इसका कम्प्लीटली अपोजिट यहाँ पर आएगा। अब हम ये क्यों करते हैं और इसको किस तरह कर सकते हैं? अगर हम जो याद है, अगर आपको हमने स्टार्ट में देखा था कि हम जब इन्वर्स इमेजेस लेते हैं या हम उसको ग्रे लेवल को चेंज करते हैं तो हमारे पास ये वाली डायग्राम थी। अगर हम इसको लेंगे RGB के लिए तो इसमें हम सिंपल फॉर्मूले में चेंजेस ले आते हैं, तो वो हमारे पास आ जाएगा SI के लिए, जो कि I सारे डेंसिटी वैल्यूज़ हैं, इज इक्वल टू TRI एंड दैट इज इक्वल टू L-1 RI फॉर ऑल द वैल्यूज़। अब हम कलर कंपोनेंट्स देखते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन उसकी ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं और उसकी एग्जांपल्स देखते हैं। कलर कंप्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन, ओरिजिनल इमेज हमारे पास ये आएगा। कंप्लीमेंट ट्रांसफॉर्मेशन फंक्शंस हैं, ये डिफरेंट फंक्शंस हमारे पास हैं जो ऑलरेडी हमने डिस्कस किए हैं। अब इसके बाद